پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اپنے پارٹنرز کی آراء جاننے اور انتظامی معاملات پر پیش رفت سے انہیں آگاہ رکھنے کے لیے ہر سال ضلعی رابطہ اجلاس کا اہتمام کرتا ہے۔ اس سال بھی 12 تا 14 مئی سالانہ رابطہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ کوآرڈینیشن میٹنگ کا انعقاد ملتان میں ہوا اور جنوبی پنجاب کے اضلاع ملتان، بہاولپور، بہاول نگر، رحیم یار خان، خانیوال، مظفر گڑھ، لودھراں، ڈیرہ غازی خان، لہیا، وہاڑی اور راجن پور سے مجموعی طور پر قریب 4500 سکول مالکان نے ان میٹنگز میں شرکت کی۔ پیف کو اس بات پر فخر ہے کہ سکول پارٹنرز نے انتہائی پرجوش طریقے سے ان میٹنگز میں شرکت کی۔ یہی وجہ ہے کہ میٹنگ کے دوران ہر دن ہال مکمل طور پر بھرا نظر آیا۔ چیئرمین پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن انجینئر قمر الاسلام راجہ، ایم ڈی پیف طارق محمود، ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر کرنل ریٹائرڈ عمران یعقوب اور ڈائریکٹر مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کرنل ریٹائرڈ اطہر رؤف اور دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ چیئرمین پیف نے تینوں دن شرکاء کو خیالات کے اظہار اور سوالات کا نہ صرف بھرپور موقع دیا بلکہ ان کے سوالات کے نہایت وضاحت سے جوابات بھی دیے، جبکہ یہ بات بھی قابل ستائش ہے کہ سکول مالکان نے انتہائی نظم و ضبط سے اجلاسوں میں شرکت کی۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور ایم ڈی نے بھی اس موقع پر شرکاء سے خطاب کیا۔ کہیں آپ کی طرف سے متعلقہ ڈاکومنٹ لانے میں غلطی ہو جائے تو اور بات ہے، ورنہ انشاءاللہ یہ میں وعدہ کرتا ہوں اور میں اس کے لیے آج کے دن بھی اور قیامت کے دن بھی جواب دے ہوں کہ انشاءاللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ ان قواعد کی روشنی میں ان قواعد کو ہم بڑی تیزی سے ساتھ حالات کے مطابق امینڈ کریں گے، انشاءاللہ کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ بنیادی مقصد اگر وہ سرخ فیتہ ہی چلانا ہوتا تو پھر تو وہ ایک محکمہ موجود تھا۔ مقصد پیف کا یہ تھا کہ حالات کے مطابق اس میں فلیکسیبلٹی ہے، اس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز جو فیصلہ کرتے ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے مثلا یہ 1 کلومیٹر کی شرط کہیں پیف کے قانون میں پہلے تو نہیں لکھی ہوئی تھی، لیکن اس کو رائج اس لیے کیا کہ تاکہ وہ ایک آسانی پیدا ہو اور ان علاقوں میں تعلیم پہنچے، ان گاؤں میں پہنچے جہاں پہ نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد جب پوری ہو جائے گی تو پھر ہم ہو سکتا ہے 1 کلومیٹر کو 500 میٹر کر دیں، ہو سکتا ہے 800 کر دیں، ہو سکتا ہے 400 کر دیں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کسی کے ہمسائے میں کھلا ہوا ہے، ایک کوئی اس طرف سے تگڑا ہے اور وہ دوسری طرف کہیں بحثیت فاتح داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ اس جگہ پہ اپلائی کر کے اور اپنے زور پہ یا اپنی کسی ایکسپرٹیز پہ یا اپنے کسی مہارت پہ وہ سکول لے لے، تو یہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اللہ یہ آپ کو میں آج یقین دلانے آیا ہوں۔ باقی میں اب وہاں پہ بیٹھوں گا، آپ کی جو فرمان ہے وہ سارے ہم سنیں گے، ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں گے۔ طریقہ کار سے آپ آگاہ ہیں کہ میں نے یہاں پہ کوئی وہ والی شعروں والی اور توصیف والی اور کوئی اس قسم کی تقریر نہیں کی، مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھا ہے، کوئی لفاظی نہیں کی، میرے سے زیادہ بہتر لفاظی شاید کوئی نہیں کر سکتا، لیکن وہی چیزیں کی ہیں جو اگر میں نے سچ کہا ہے تو وہ ضرور آپ تک آپ کے دلوں پہ وہ گیا ہوگا، اور اگر نہیں کہا تو آپ نے زندگیاں گزاری ہیں، آپ لوگوں کو جج کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ جو کہ برننگ ایشوز 2 ہی تھے، ہڈن پارٹنرشپ، اس کے لیے میں نے واضح طور پہ اپنی اس پالیسی کا اعلان کیا کہ وہ ہم انشاءاللہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اپنے کسی پارٹنر کو ایک جھوٹے یا سچے، جعلی یا اصلی کسی کاغذ کے ٹکڑے کی بنیاد پہ پریشانی کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ اگر کسی نے دیا بھی ہوا ہے تو اسے بھول جائے، اور ہاں اگر وہ اپنی اوبلیگیشن کو اوبے کرنا چاہتا ہے، کسی نے کو وعدہ کیا تو ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں، لیکن یہ نہیں چلے گا کہ کوئی وہ بلیک میلنگ کرے گا۔ کہ سمر کیمپ کی اجازت اسکولوں کو ہونی چاہیے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ حکومت پنجاب، یعنی آپ ایک تو پیف کے پارٹنر تو ہیں ہی ہیں، آپ ادروائز بھی ایک اسکول ہے جس کو ڈی سی او بھی ان قوانین چھٹیاں آپ نہیں کرتے تو وہ اسے چیک کر سکتا ہے، ای ڈی او بھی کر سکتے ہیں، چونکہ آپ رجسٹرڈ اسکول ہیں میجورٹی، تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ آیا اس کے کہاں گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن بہرحال وہ آن پیمنٹ تو کسی صورت نہیں ہوگا کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں پیمنٹ پہ کراؤں گا، اس پہ ہم غور کریں گے کہ آیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ ابھی پچھلے 2 سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت کی طرف سے بھی اس کی
छुट्टियों के शेड्यूल की इम्प्लीमेंटेशन में सख्ती हुई, इवन कॉलेजेस में भी वो सख्ती हुई, तो अगर कोई ऐसी चीज़ ना हुई तो उस पर हम इंशाल्लाह गौर करके और उसको करेंगे। किसी और दोस्त ने कल बात की थी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की जो पेमेंट थी, तो उसमें 97-98% स्कूल्स को आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की पेमेंट हो चुकी है, लेकिन कुछ के इनफरादी मामलात ज़रूर होंगे, लेकिन इज्तिमाई तौर पे जो पिछली दफ़ा DCM में ये पॉइंट आउट हुआ था कि आउट ऑफ स्कूल की नहीं हुई, इज्तिमाई को हो गई। कुछ परसेंटेज जिनकी कोई इनफरादी चीज़ें थी, कुछ फेज़ 9 के फेलियर स्कूल थे, कुछ और थे जिसका कोई इशू होगा तो वो ज़रूर होगा, लेकिन वो पेमेंट हो गई है, वो हमने क्लैरिफाई कल किया था। दो चीज़ें मुझे कैंसलेशन स्कूल्स में नज़र आई, बड़ी वजूहात, बाकी चलें छोटी मोटी वजूहात थी। एक हिडन पार्टनरशिप, मेरे को पिछले साल डेढ़ में मैंने देखा जी फलां की हिडन पार्टनरशिप थी। बात नामुनासिब है कि अगर आपने पार्टनरशिप वहाँ पे डिक्लेयर नहीं की हुई और किसी को स्टैम्प पेपर लिख के दिया है, तो वो अगर स्ट्रिक्टली कानून की रोशनी में देखें तो वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट अगर कोई चीज़ आप छुपाते हैं, पूछी जाए और ना बताते तो वो कैंसलेशन पे हो जाती है। उसी तरह अकाउंटेबल हूँ जिस तरह के पैफ के दीगर लोग, वो मैं तनख्वाह नहीं लेता पैफ से, ना मैं कोई सरकारी मुलाजिम हूँ, लेकिन एक मिशन है। मैं चूँकि साफ पानी का जो प्रोजेक्ट अभी इस इलाके में शुरू होने जा रहा है, उसका भी मैं शुरू से बोर्ड पे भी हूँ, मैं उसके प्रोक्योरमेंट का हेड हूँ। तो हम ये बात आपस में उस दिन भी एक दिन कर रहे थे कि ये वो दो कॉजेज़ हैं जिसके लिए मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपने हल्के के मामलात को की कुर्बानी दी है और बाकी मामलात पे ज़्यादा इस पर। तो मैं कहता हूँ कि हल्का तो एक छोटी सी चीज़ है। फ़र्ज़ किया मैं पिछले अगर 12-15 साल से मुझे अल्लाह ताला ने वो हल्के में इज़्ज़त दी हुई है, तो अगर फ़र्ज़ किया उसकी कुर्बानी देनी भी पड़ती है इस बड़े कॉज के लिए, इसके लिए तो अगर मेरी और आपकी इस कॉज के लिए कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, उसके बाद अपने ज़मीर अपने अंदर के सामने जवाब दें, उसके बाद इस मुल्क और इस सूबे के वो ख़जाना कि जिसका इस्तेमाल करने के लिए हमें अमीन बनाया गया है, उसके सामने जवाब दें और अपनी जो क़यादत है, लीडरशिप है, उनके सामने जवाब दें। लेकिन उन पहली दो चीज़ों के बाद फिर ये तीसरे मराहल आते हैं, और उसकी रोशनी में हम पूरी कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आपका कोऑपरेशन पहले भी हासिल रहा है, आइंदा भी हासिल रहेगा। और प्रोएक्टिव तौर पे हमने ये इक़दाम किए। बहुत सी चीज़ें जो यहाँ आने से पहले हम डिस्कस करके और सोच रहे थे और तकरीबन उन पर फाइनल हो गया। मसलन किताबों का मसला कल की DCM में लोगों ने उठाया कि किताबें नहीं मिलती, और बहुत जायज़ मसला है कि अगर अप्रैल में क्लासेस शुरू होती हैं और किताबें जाके 30 अप्रैल या 15 मई को मिलती हैं, और जो खुसूसन नए स्कूल एनलिस्ट होते हैं, जिस तरह फेज़ अभी 7 आया NSP का, फेज़ 8 आया, तो उनको तो हमें चूँकि किताबों की एस्टीमेट जा चुका था, उनके लिए तो शायद हम अगस्त तक किताबें मैनेज करेंगे। तो फिर उस सूरत में वो इम्तहान या QAT कैसे देंगे जनवरी में या दिसंबर में, बड़ा जायज़ था। उस पर हमने एक कल ही फैसला किया। वो उसकी कानूनी अभी चीज़ें बाकी हैं और इंशाअल्लाह उसे रिमूव करेंगे कि किताबों का जो निज़ाम है वो इस तरह हो। और ये बहुत, फिर जब हम अमीन हैं तो आप भी उसके अमीन बनेंगे, और वो ये होगा कि वो किताबें कि पेमेंट की कोई किसी सूरत में रीइंबर्स स्कूल पार्टनर को कर दिया जाए, और वो ज़िम्मेदार हो, पाबंद हो कि वो ईच एंड एवरी चाइल्ड स्टडिंग इन स्कूल उसको वो किताबें फराहम करेगा। और उसके लिए चूँकि वो उन किताबों का बाज़ार में फिर बिकने का भी एहतमाल होता है, उसके लिए कोई स्पेसिफाइड किस्म का कोई स्टिकर या ऐसी चीज़ उस स्कूल को प्रोवाइड की जाए, और वो स्कूल उस स्टिकर को लगाने का पाबंद हो। फिर हम चेक ज़रूर करेंगे उसको कि हर बच्चे की किताब पे वो स्टिकर लगा हुआ है, और वो फिर उसको दे, और वो किताबें ख़रीद के बच्चों को दे, और हम उसको वो पैसे रीइंबर्स कर दें, ताकि आप भी उस परेशानी से बच जाएं जो कि आपको किताबें न मिलने की वजह से गैर यकीनी, और बच्चों का तालीमी मेयार भी बेहतर हो। ये हम सोच के, और इस पर इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है अल्लाह के फजल व करम से इस स्टेज पे खड़े होकर, और इस स्टेज के अलावा
हर जगह पे जहाँ पर मैंने खड़े होके या इवन किसी दफ्तर में बैठ के वादा किया, अल्लाह के फजल करम से उसे पूरा किया है। मसलन 1 किलोमीटर की शर्त जब लगाई गई तो उसके पीछे दो चीज़ें थी। एक तो ये था कि पार्टनर्स किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग का, किसी किस्म के प्रेशर का शिकार ना हो और सुकून से वो तालीम दें। कहीं ये ना हो कि उन्हें ये ख़तरा हो कि मेरे पिछवाड़े में या मेरे बगल में कोई स्कूल खुल जाएगा। तो उस पर आप सब गवाह हैं कि बड़े प्रेशर्स आए, बड़ा सब कुछ हुआ, लेकिन चूँकि वो एक असूली फ़ैसला था, असूल की बुनियाद पे किया गया था, एंड वी स्टूड बाय इट। उसके सारे हालात से आप आगाह हैं, क्या क्या नहीं हुआ, और वो अल्लाह के फजल करम से आज भी उसी तरह राइज है। उस वक्त तक राइज रहेगा जब तक हम पूरे पंजाब में उस 1 किलोमीटर की रेडियस में कारपेट कवरेज स्कूलों की नहीं दे देते। उसके बाद हो सकता है वो 800 मीटर हो जाए, लेकिन ये नहीं होगा कि आपके स्कूल के किसी असर रसूख की बिना पर कोई किसी और बिना पर आपके बगल में स्कूल खोल ले, आपके दाएं खोल ले और फिर आपको उस किसी परेशानी का शिकार करे। ये भी उस वक्त भी वादा था, आज भी हम उसके साथ खड़े हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को समझ करता हूँ, दिल की बातें हो गई, आपकी बातें सुन ली। मेरा जज्बा, मेरी टीम की स्पिरिट आपके साथ। रिकॉर्ड मेंटेन करें, रिकॉर्ड मेंटेनेंस में बहुत गुंजाइश है। सिर्फ का डाटा मेंटेन रखें। कैश ट्रेडिशनल कैश ट्रांसफर है, हर बंदा हमें देखता है, जो जो खामियाँ करें। पिछले साल की बनिस्बत अल्हम्दुलिल्लाह 70 से 75% इस्लाह हो गई है। टीचर इंफॉर्मेशन सिस्टम पे हमें बड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी। ये मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि टीचर्स ने फिक्र न करो, देगा साड़ियाँ नहीं खरीद रही। टीचर इंफॉर्मेशन सिस्टम में मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना सिस्टम बनाएं। टीचर की क्वालिफिकेशन, उसकी पे और उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। सबसे बड़ा इशू आपका जो मेरा दिल करता था, आप खुद बताएं। स्टूडेंट रिटेंशन के साथ साथ टीचर रिटेंशन। हमारा टीचर टिकता नहीं, हमारे टीचर की फ्लुएंट नेचर है। बेटियाँ हैं हमारी, शादी ब्याह में BA किया, FA किया, माँ कहेंगी जाओ रुबीना भैन का स्कूल है तो तू ही 6 महीने चली जा, जरा जब तेरा ब्याह नहीं था। वो हमारी बच्ची जो है स्कूल में आ जाती है, आके 6 महीने बाद चली जाती है। हमारा टीचर जो है उसके टिकने के कई फैक्टर हैं। मैं अब बड़ी अदब से गुजारिश करूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मिनिमम वेज, मैं खुद एडवोकेट हूँ, मिनिमम वेज नहीं दे सकते हम। जब मैं ये हाईएस्ट फोरम पे भी कह चुका हूँ, बड़े बड़े फोरम पे ये बात हुई है। मैं कहता हूँ जो मैं देता क्या हूँ, 30 बच्चों की क्लास ज़रबे 550, तो ये नेट बना 16-17 हज़ार। तो मैं ये कहूँ कि मिनिमम वेज के तहत 14,000 दें और साथ कहूँ कि जी नेस्ले का डिस्पेंसर रखें, तो फिर वो कहेगा जी ये ले चाबी फिर स्कूल भी आप चला दें। मैं जो दे रहा हूँ, लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल है, जो मैं दे रहा हूँ उसके अंदर ही तकादा करूँगा। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है, ये 2,000 और 2,500 और 3,000 ये भी न चले। खुदा वास्ते अंडर मैट्रिक मैं आहिस्ता इसलिए बात कर रहा हूँ कि बाय ना सुने। खुदा दुआए अंडर मैट्रिक पे बड़ी चंगी होती है, अल्लाह की कसम बहुत जिल्लत होती है। मैं मिन्नत करता हूँ बड़ा भाई होने के नाते, पीछे का छोटा हूँ किसी का बड़ा हूँ। अंडर मैट्रिक वाला वर्कई पार्टी आपके लिए, हमारे लिए नदामत का बायस है। हाई कोर्ट में कसम खुदा के रेटे का तुमने शुरू कर दिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक और दूसरा थोड़ा सा गौर करें। सिक्योरिटी गार्ड को दे रहे हैं 5,000, स्लीपर को दे रहे हैं 4,000, टीचर को दे रहे हैं, मैं इसका बोल रहा हूँ वहाँ बाहर जाएंगे 2,000। अब मुझे बताएं टीचर 2,000 जो ले रहे हैं, यार वो चिप्स का पैकेट जो है फजूल सा वो 50 रुपये का आता है। आप उसे कहते हैं कि ये लो 2,000 रुपया। पर मैंने कुछ सैलरी ऐसी देखी है, इसमें अगले दिन मुझे SMS आया कि तेरी मेमोरी कार्ड ख़त्म, कोई 47,000 तस्वीरें हो गई हैं। उन्होंने कहा इनको डिलीट कर, फाड़ा कर। अब मुझे ये बताएं 1,500 रुपये की सैलरी है, 1,500 रुपये सैलरी, प्लीज़ टेक केयर। मैं बड़ा झटका सा हिसाब करता हूँ जाके, मैं कहता हूँ मुझे बताएं कुल पेमेंट कितनी आ रही, माशाल्लाह बच्चे कितने हैं? और जी अल्लाह का शुक्र है 890 बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 890 पेमेंट कितनी आ रही? बस सर देख के दस रहे, मैं कहना ना जुबानी दस, और जी 4,12,000। मैं कह लिया कब्ज़ल वसूल, वहाँ कब्ज़ल वसूल देखता हूँ, तस्वीर बनाता हूँ। अब ये बड़ी मौज है, ना रील, ना कोई नेगेटिव, ना कोई तुलाई, दिल करे रखें, दिल करे उड़ा दें, नजर ही कुछ नहीं आ रहा।
क्या डिस्टेंस रखना मेरी और आपकी अखलाकी जिम्मेदारी नहीं? कहाँ गया वो प्रिंसिपल जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो सीटिंग अरेंजमेंट बैठे? देखिए, लैंड ओनर अगर एब्सेंटी लैंड लॉर्ड है, जो स्कूल का ओनर है अगर वो एब्सेंटी लैंड लॉर्ड है, मैं जाकर 15-15 मिनट स्कूलों के बाहर खड़ा रहता हूँ, नॉक करता हूँ, वो मेरे साथ जो होते हैं बेचैन हुए कि जी नौ बिल्ला एमडी खलोता है, एमडी बाहर खलोता है तो केड़ा क़यामत आ गई है। मैं कहता जस्ट होल्ड ऑन, देखते हैं क्या करते हैं। 10 मिनट बाद दरवाजा खुलता है, हाँ जी बताएं। मैं कहा खबरदार जो कोई क्या एमडी आया, कोई जी पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन तो आए हैं। ठहर जाइए 1 मिनट, 5 मिनट बाद वापस आता है। वो अंदर का जो वैश्य जट है ना, कम वक्त फिर वो गंडासा लेके निकलता है बाहर, फिर उसको जूतियां मार के अंदर किया जाता है, नहीं चुप कर। 15 मिनट बाद आता है, कहता जी बाजी इतने को नहीं, बाजी कितने गए ने? बाजी जी दूसरे स्कूले गए। तो खैर ना भाईजान कितने? भाईजान तीसरे स्कूल गए ने। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। कोई पैफ ओनर, कोई पैफ पार्टनर अपने स्कूल की मैनेजमेंट का जिम्मेदार है। अगर वो नहीं है, उसकी अदम मौजूदगी में उसका हुक्म होगा कि कोई हिलेगा नहीं यहाँ से जब तक स्कूल आ रहे। उसकी कैटेगरी हुक्म होना चाहिए उसका कि मेरी अदम मौजूदगी में ये चेन है, अगर ए नहीं होगा तो बी होगा, ये नहीं होगा ए और बी दोनों गए, ये नहीं होगा। क्यों? बाथरूम ऐसे गलीज कि जिनका कभी किसी ने विजिट न किया हो, पानी की टंकियां इतनी गलीज कि जिसका कभी ने सफाई न करवाई हो, वाटर कूलरों के ढक्कन टूटे हुए, टूटे ढक्कनों में बच्चे पानी पी रहे हैं, आधा बुक से नीचे गिर रहा है, उसमें से आधा वो पी रहे हैं, उनके अपने झोली पे गिर रहे हैं। क्या ये तरीका है जमाने में पनपने का? यहाँ कौन सा आप कहेंगे जी कौन कह रहा है? ना मैंने कभी घर में डिस्पेंसर वाला पानी पिए अपना इसका नेस्ले का, ना हम में से कोई और अफोर्ड कर सकते हैं। मैं कहता हूँ, मैं कब कहता हूँ कि हम वहाँ नेस्ले का डिस्पेंसर खुआएं या टाइलर खुआएं? प्लीज जो बेसिक एमिनिटीज है, जो बेसिक एथिक्स है, सर्विसेज है, औलाद को जो देते हैं, क्या पीने का पानी साफ पानी में काफी नहीं है? क्या बाथरूम साफ करके, मैं कब कहता हूँ कि वहां पर खास कर टाइलर लगवा दें? इन मासूम बच्चों की माएँ वो हैं, अगर कभी इनका पर्सनल लाइफ में आपके साथ इंटरेक्शन हो जाए तो ये अपनी चुन्नी उतार के, उस चुन्नी से कुर्सी साफ करके या चारपाई पे अपनी चुन्नी बिछा के पहले दौड़ में चूल्हे पे थे वो, ये वो सादा लोग हैं। खुदा वास्ते इनकी कदर करें आप। अल्लाह इनके सदके हमें बहुत कुछ दिया है, अल्लाह ने सब कुछ दिया है। आज हम यहाँ बैठे हैं, ये मेरी बेटी उम्र पे जा रही है, उसके साथ टीचर जा रही है, जिस सारे के सारा तालीम और इसकी इंटरेक्शन की वजह से। अल्लाह ताला उनको भी इज्जत दे जिन्होंने इस बच्ची का हौसला अफजाई किया। मेरी रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों को हम दिल की गहराई से वो करें। अपने प्रिंसिपल्स को, यहाँ ओनर्स बैठे हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़। ख़ास तौर पर मुझे वहाँ बड़ी दुख होता है, दिक्कत पेश आती है जहाँ अल्लाह ताला ने आपके मामलात में बरकत दी है। माशाअल्लाह, अल्लाह की रहमत से आपके पास 10-10, 8-8, 6-6 स्कूल है। अल्लाह करिए ये 100-100 हो जाए, पर प्लीज़ इग्नोर न कीजिएगा, जो जिम्मेदारी आपकी है। मैं कल भी कह रहा था दुख के साथ, कल एक दुख आया कि डीएमए का रवैया, डीएमए का रवैया, मैं डीएमए के रवैये पे बिल्कुल दिल के साथ बात करूंगा। डीएमए आपने देखा ही नहीं था कभी। डीएमए नाम की किसी चीज से पैफाशना ही ना थी। साल में एक खूबसूरत सा विजिट हुआ करता था डिप्टी डायरेक्टर्स का या असिस्टेंट डायरेक्टर का। अस्सलाम वालेकुम, एक असूल है जी कि अपना पैफ का जो आएगा बंदा वो पानी भी नहीं पिएगा, वो पानी भी नहीं पिएगा। बड़ी अच्छी रुआयत है जी, पानी भी नहीं पीते। साल बाद आए हैं, चलेगा ना खैर सादा, काम आपका फैल रहा है। मैं बार बार शुरू में गुफ्तगू करते कहा था कि अब आपको इतना बड़ा शीशा लगा हुआ है, आपको देखा जा रहा है, आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब हर चीज़ के बारे में जब भी मीटिंग होती थी डिफेंड के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, डोनर्स के साथ, तो मैं स्टार्टिंग आंसर होता था कि जी व्हाट इज योर मैकेनिज्म ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। देयर वाज नो प्रॉपर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। ये डीएमईएस आ गए, फिर वही बात, एटीट्यूड और रवैया। माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर, दे आर नॉट थानेदार, दे आर नॉट थानेदार। वो मेरे जुमला को मैं पूरी बड़ा मजाक किया करते हैं कि वो जुमला का फिर बोल। वी आर ऑल हम्बल पब्लिक सर्वेंट, नथिंग लेस नथिंग मोर। इससे अलावा कुछ नहीं है। ये नोमेनक्लेचर है पोस्ट का कि ही इज एमडी, ही इज डायरेक्टर, ही इज डिप्टी कमिश्नर, ही इज कमिश्नर ना, ये नोमेनक्लेचर है पोस्टों के तनख्वाह लेने के लिए बजट बुक में से। अदरवाइज कसम खुदा की सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट हैं। आखिर में स्कूल पार्टनर्स को पैफ की मुकम्मल मुआवनत और तावन की यकीन दहानी कराते हुए मुफ्त तालीम की फराहमी के इस मंसूबे में अमली जद्दोजहद पर इन्हें खराज तहसीन पेश किया।